A very good morning to everyone. Welcome in E-class of Social Science. Students, today we will continue chapter number 3 in history, that is the Delhi Sultanate. Students, the Sultanate period is extended from 1206 to 1526. The Delhi Sultanate was the Persian-speaking dynasties of Turkish and Afghan origin. Many other dynasties came in our country, but these 5 dynasties are included in Delhi Sultanate. Those are like Slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasty. As you can see all these dates on your screen also. Slave dynasty from 1206 to 1290, Khalji dynasty from 1290 to 1320, Tughlaq dynasty from 1320 to 1413, Sayyid dynasty from 1414 to 51, and at the very last, that is the Lodi dynasty, that is from 1451 to 1526. Children, now we will know about the main sources of information of Sultanate period. As you know it very well that in Sultanate period and especially we can say about the medieval period, तो medieval period में लोगों ने लिखना बहुत अच्छे से कंटिन्यू सीख लिया था. देखो, if we talk about the ancient period like in your 6th class, as I have told you कि लोगों के पास बहुत सारे हमारे पास sources of information इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था. Most of all they were using pictorial language, but now in this time period many written records have been found. Like those written records are the main sources. They are mainly in Persian and Arabic language. These are accounts of travelers and court chronicles. So these are few important sources of medieval period. चिल्ड्रन, सल्तनत पीरियड जो है इसमें मेन 5 डायनेस्टी है. तो फ्रॉम स्टार्टिंग इफ़ वी टॉक तो 3 डायनेस्टी आर मेजर एंड 2 डायनेस्टीज आर माइनर डायनेस्टी. दे आर काउंटेड एज माइनर डायनेस्टी. सो द मेजर डायनेस्टी दैट इज मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, Tughlaq dynasty, and minor dynasties are Sayyid and Lodi dynasty. As you can see all these things on your screen. So these are 5 important dynasties which create Sultanate period from 1206 to 1526. So at the very first we will talk about slave dynasty. Slave dynasty जो है इसका फाउंडेशन डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. In last class we have already discussed about the Arab invasion, but again मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. So on your screen which you are seeing the important names of slave dynasty, those are Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan और Ghiyasuddin Balban. Beta, as you know it very well that before the slave dynasty there were so many Arab invasions in our country. So in chapter 2nd I have already discussed and told you about this, about the 17 attacks of Mahmud of Ghazni, that how he invaded our country, and I have also told you about Muhammad Ghori. तो Muhammad Ghori जब हमारी country में आया and when he annexed for a few parts of our country, तो यहाँ से जाते हुए उसने अपने बहुत ही वफादार slave जो कि कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ छोड़ा ताकि वो उसके छोड़े हुए जितना भी साम्राज्य है, जितने भी एरिया को उसने कैप्चर किया है उन सबको देखे. तो ही अनेक्स्ड मेनी टेरिटरीज इन इंडिया टू मोहम्मद गौरी, एंड बिफोर गोइंग बैक टू अफगानिस्तान ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल. हु वाज दैट जनरल? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक इन इंडिया. और तब से ही शुरू होता है स्लेव डायनेस्टी. Now as you can see this image, this green portion is showing the dynasty of slave dynasty. तो ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे जो था स्लेव डायनेस्टी इतनी थी. ठीक है, तो these are few important names of important kings of slave dynasty. Those are कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और गियासुद्दीन बलबन. Students, in these all names कुतुबुद्दीन ऐबक is important, शमशुद्दीन Iltutmish is important, Rukunuddin Firoz Shah is not much important, Razia's name is important, Nasiruddin Mahmud Shah was also not much important, and Balban is important. So we will discuss about these all 4 kings. At the very first we will know about Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak, beta, he was the general
एक्चुअली ही वॉज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ गुरीद डायनेस्टी, और उसके बाद बिकॉज ही वॉज अ स्लेव, तो उसको यहाँ पर जब छोड़ा गया तो जस्ट बिकॉज बीइंग अ स्लेव यहाँ पर स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लाख बख्श। तो वाई ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श? बिकॉज लाख बख्श उसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो लाखों दान में दे दिया करता था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार इन दिल्ली, बट सून आफ्टर ही डाइड ही कुड कंप्लीट ओनली फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ही इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। Slave dynasty is also known as the Mamluk dynasty. So the second king of slave dynasty, that is Shamsuddin Iltutmish from 1211 to 1236. Beta, he was the effective founder of Delhi Sultanate because in his time period only the boundary of Delhi Sultanate has been extended too much. बंगाल से लेके पेशावर और अफगानिस्तान तक की पूरी बाउंड्री थी। तो he put down the rebellion with the emperor and constructed 3 more stories in Qutub Minar. So Iltutmish is known as the real founder. The third king, she was Razia Sultan. She was the first and the last Sultanate female king, and she was not accepted by the nobles. That's why she had faced so many problems in her time period. Her real name was Razialuddin, and she was the first female Muslim ruler of Indian subcontinent. Her reign was very short but full of problems. Why full of problems? क्योंकि वो बिना नकाब के चलती थी, मेल्स की तरह ट्रीट करती थी सबको, इसीलिए लोगों को वो जल्दी पसंद नहीं आती थी। तो nobles were opposing her. That's why she could not work too much. Ghiyasuddin Balban was the last king. तो who was Ghiyasuddin Balban? बेटा रज़िया सुल्तान के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, जिसमें वॉर ऑफ सक्सेशन भी नहीं कह सकते, इसमें उसके जो भाई थे वो खुद सल्तनत के लिए लड़ रहे थे। तो दैट इज़ वाई जो नसरुद्दीन महमूद जब किंग बना, तो बलबन जो था ही वॉज द वज़ीर इन हिज एम्पायर। तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और बाद में वो किंग बना। ही रिड्यूस द पावर ऑफ नोबल्स एंड हाइटन द स्टेटस ऑफ सुल्तान एंड इंट्रोड्यूस फ्यू इम्पॉर्टेंट पर्शियन कस्टम्स, दोज वर सिजदा एंड पैबूस। Now the next kingdom, that was Khilji dynasty. Beta Khilji dynasty was as much important as slave dynasty. So the main founder of Khilji dynasty, that was Jalaluddin Firoz Khilji, and the important king of this dynasty was Alauddin Khilji. Next, these kings who are Shihabuddin, Kutubuddin, Mubarak Khan, Khusro Khan, they are not as much important as Alauddin Khilji. Alauddin Khilji's name was Khusro Khan. So he had taken advantage of Jalaluddin Khilji and became the king. लेकिन Alauddin was very much ambitious and conquered a large part of North India. और South India के parts को जीतने के लिए उसने क्या किया? अपने trusted जनरल मलिक काफूर को एक आर्मी के साथ साउथ इंडिया में भेजा, जहाँ वो दक्कन के बहुत सारे पार्ट्स को जीत कर भी आया। अलाउद्दीन खिलजी का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट जाना जाता है बिकॉज ही हैड चेंज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हिज मार्केट पॉलिसी, हिज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सो मैनी थिंग्स। सो what was his economic measures? Firstly, he ordered to measure all land which were under cultivation and his land was divided according to the fertility. और जो वो उसके टाइम पीरियड पे जो एक फिक्स टैक्स जो देना होता था, that was खराज। तो ही रेज द लैंड टैक्स इन दोआब रीजन। दोआब के रीजन में भी उसने क्या किया था? लैंड टैक्स को पूरी तरह से बढ़ा दिया था, जिसके कारण उसके पास बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आ रहा था। अलाउद्दीन इज़ नोन फॉर हिज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये जो उसने पॉलिसी बनाई थी, ये आने वाले समय में मुगल्स के थ्रू, जहांगीर के थ्रू और अकबर के थ्रू भी इसको फॉलो किया गया था। एक्चुअली व्हाट ही हैड डन, ही वाज एन एम्बिशियस मैन। वो एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करना चाहता था, लेकिन उस पर खर्च नहीं करना चाहता था। तो व्हाट ही हैड डन, उसने बहुत बड़ी आर्मी एक बनाई, उनको सैलरी बेस पर रखा। बट व्हाट ही हैड डन, उसने अपनी आर्मी को परेशानी ना हो और वो उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए he had lowered the price of all essential items in the market. Those essential items like all kitchen items, all household items, इन सारी चीज़ों के मार्केट में प्राइस बहुत ही चीप कर दिए, जिससे उसने बहुत बड़ी आर्मी तो मेंटेन कर ली, लेकिन एट दैट टाइम पीरियड जो उस टाइम ट्रेडर्स थे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था। वेल, व्हाट वाज हिज रिफॉर्म्स इन आर्मी? तो ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश एंड इंट्रोड्यूस धाग एंड चेहरा। धाग वाज ब्रांडेड
branded horse and Chehra was that sepoy who used to maintain that branded horse. तो जो उस branded horse को देख रेख करता था that is known as Chehra. In his time period, sepoys were posted in different parts of the empire. Now the next dynasty was तुगलक डायनेस्टी. बेटा तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेम है दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. वेल दोज इंपॉर्टेंट नेम्स हु वर द इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी, दे आर जियासुद्दीन तुगलक, द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक द सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव वर्क्स हुए हैं. एंड एट द वेरी लास्ट दैट इज़ नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक. So we will talk about Muhammad bin Tughlaq. He was the most powerful ruler of this dynasty and known as Jona Khan. So in history he is known by a name of mad king. उसको पागल राजा भी बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने जो भी स्टेप्स लिए उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई. एक्चुअली ही वॉज नॉट मैड, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट मैन, बट ऐसा कह सकते हैं कि शायद किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया. तो दीज 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो उसने लिए जिसकी वजह से उसको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, दैट इज़ फर्स्ट टैक्सेशन इन दोआब, शिफ्टिंग इन कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी. तो एज यू कैन सी दीज ऑल टैक्सेशन इन दोआब का मतलब दोआब के रीजन में उसने टैक्स को बढ़ा दिया था. तो उसने गलत नहीं किया था, एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये किया था. लेकिन इस टाइम पीरियड पे जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक किंग बना इस टाइम पीरियड पे यहाँ पर सूखा यानी ड्रॉथ का टाइम पीरियड चल रहा था, जहाँ लोगों के यहाँ खेती नहीं हो रही थी, उनको फोर्सफुली रिवेन्यू देने के लिए कहा जा रहा था. तो इस टाइम वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था. शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, तो इन 1327 ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. वेयर इज़ दौलताबाद? दौलताबाद इज़ एट द सेंटर ऑफ दक्कन. तो इट इज़ इन महाराष्ट्र, टुडेज महाराष्ट्र में है दौलताबाद, जिसको देवागिरी भी बोला जाता है. वाई ही शिफ्टेड हिज कैपिटल? तो इसके पीछे कुछ रीजंस थे. फर्स्ट रीज़न वॉज दिस कि वो दोआब के रीजन से हटने के बाद उसने सोचा कि वो अपने पूरे इंडिया पर वो कंट्रोल कैसे करे, इसके लिए उसको सेंटर में रहना चाहिए. दूसरा, दिल्ली पर मंगोल इन्वेजन्स बहुत सारे हो चुके थे जिससे वो बचना चाहता था. तो दीज वर फ्यू रीजंस. लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब उसको पानी की परेशानी हुई, वहाँ के लोगों को वाटर की स्कैरसिटी हुई, तो वहाँ से उसने तुरंत 2 साल बाद ही बोला कि वापस चलना है, जिसमें बहुत ही जान माल की हानि हुई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत प्रॉब्लम हुई और किंग बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया. थर्ड इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. इट मीन्स what he had done actually in 1329 Sultan decided to mint coins of brass and copper for day-to-day life, but the design of the of that coin was very simple enough so the common man can easily copy that. So that was the loss of money value. लोगों ने अपने घरों में ही मनी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि जो मनी थी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी. कॉपर की जो मनी उसने निकाली थी उस करेंसी की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई. उसके ऊपर पंच मार्क बहुत अच्छे से नहीं था, तो लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया और शाही ख़जाना जो था वो कॉपर की करेंसी से भरने लग गया था. तो इट वॉज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ दैट टाइम पीरियड. Firoz Shah Tughlaq is known as the second important king from 1351 to 1388. Firoz Shah was Mahmud's cousin and always followed noble. तो वो हमेशा नोबल्स को मानता था, उनके अकॉर्डिंग चलता था. उसने एकता सिस्टम को भी शुरू किया एंड ऑल्सो ही फॉलोड इस्लामिक लॉज. जो भी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे उन सबको मानता था. लेकिन फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, म्यूज़िक हो या कोई भी फील्ड हो या फिर आर्किटेक्चर हो, हर फील्ड में लोग जो थे वो आगे बढ़े क्योंकि उसने लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करवाई, उसने लोगों की हेल्प भी की. तो बहुत तरह से देखा जाए तो फिरोज़ शाह तुगलक वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर ब्रोकन अप. उसकी डेथ के बाद जो एम्पायर था वो पूरी तरह से टूटने लग गया था. देन जो नेक्स्ट किंगडम आता है दैट इज़ द सैयद डायनेस्टी. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ खिज्र खां, मुबारक शाह सैयद, महमूद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन आलम शाह. बेटा सैयद डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मानी जाती, ये माइनर है क्योंकि कुछ ही सालों तक फ्रॉम 1414 टू 1451
बस केवल इतने सालों तक ही चली, जिसमें खिज्र खां का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट आता है क्योंकि इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, मंगोल इन्वेजन हुआ था और वहाँ से जाते हुए तैमूर ने क्या किया था, खिज्र खां को यहाँ अपॉइंट कर दिया था कि उसको देखना है। तो इस तरह से सैयद डायनेस्टी बनी थी। सैयद के बाद जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ लोदी डायनेस्टी। तो बहलूल लोदी इज़ द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। आफ्टर इट द नेक्स्ट किंग इज सिकंदर लोदी फ्रॉम 1489 to 1517 and the important king that is Ibrahim Lodi. तो we will read about Ibrahim Lodi कि Ibrahim Lodi was the Afghan dynasty. Ibrahim Lodi's dynasty was an Afghan dynasty that ruled the Delhi Sultanate from 1451 to 1526. It was the last dynasty of Delhi Sultanate क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ मुगल डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, सिकंदर लोदी वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग इस टाइम पीरियड का, और जो नेक्स्ट पावरफुल किंग था लोदीज़ का वो था इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी ने अपने टाइम पीरियड पे अफ़गान जितने भी रूलर्स थे, नोबल्स थे, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया, जिसके कारण जितने भी अफगान नोबल्स थे दे रिवील्ड अगेंस्ट हिम एंड द नोबल्स ऑफ दिस एम्पायर कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम विद बाबर। उन्होंने क्या किया, इसके जो नोबल्स थे इनके दरबार के, उन्होंने बाबर को इनविटेशन दिया कि वो यहाँ आए और इब्राहिम लोदी के साथ बैटल में उसको हराए। देन बाबर केम इन आवर कंट्री इन 1526 विद हिज आर्मी एंड अटैक्ड ऑन इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो अंदर ही अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रखी थी, षड्यंत्र हो रखा था, और अंदर ही अंदर लोग जो थे वो सब बाबर से मिले हुए थे, उसके नोबल्स। तो इस वजह से इब्राहिम लोदी जो था इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 इब्राहिम लोदी लॉस्ट हिज एम्पायर। So after 1526 in 1526 we can say दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है और इसके बाद शुरू होता है मुग़ल एम्पायर। जो आप ये पिंक पोर्शन देख रहे हैं पूरा इंडिया का, मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से धीरे धीरे करके बाबर के बाद उसके जो नेक्स्ट सक्सेसर्स हुए, इन सब लोगों ने मिलकर हमारे इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और इसके बाद कई सालों तक, मतलब फ्रॉम 1526 to 1857 तक यहाँ मुग़ल एम्पायर चलता रहा। आफ्टर इट हमारे यहाँ ब्रिटिश राज चला, जो आप नेक्स्ट क्लास में 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल हेयर आपका सल्तनत पीरियड ख़त्म हो रहा है एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद मुग़ल पीरियड। वेल स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।